So in this chapter you will be understanding what types of rulers were making in artistic things, right? Whatever buildings they were making, whatever paintings were at the time present. So what were the techniques, what were the things they were using it in the different objects, while in the form of monuments or in the paintings or whatever creative aspect. Correct? Yes. So this chapter will be telling you about all such things. The name is specific rulers and buildings. So figure 1 shows the balcony of the Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. You can see this. This is what? Qutub Minar. Who has started making it? Qutbuddin Aibak has started making the Qutub Minar, but it was completed by Iltutmish. Fine? Started by Qutbuddin Aibak and ended up by Iltutmish. Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. Can you see 2 bands of inscriptions under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. Only the most skilled craft person could perform this task. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? So in this chapter you will be basically understanding the patterns of the different curvatures and the designs which were made by the creators, the painters or the excavators. So you can understand what exactly which was going on in that era. है ना? जैसे आज के घर बनते हैं, पहले के घर बनते थे, आज की बिल्डिंग्स बनती है, पहले की बिल्डिंग्स होती थी. So such kind of pattern. Yes. What? What is not visible? Each and everyone cannot see the screen. Yashmin, is it visible? So जिनको नहीं दिख रहा है kindly check your one activity. Between the 8th and the 18th centuries, king and their officers built 2 kind of structures. The first were forts, palaces, garden residences and tombs, safe, protected and grandiose places of rest in this world and by the next. The second was structures meant for public activity including temples, mosques, tanks, wells, caravan series, caravanserais and bazaars. Kings were expected to care for their objects and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their praise. Construction activity was also carried out by others including merchants. They built temples, mosques and wells. However, domestic architecture, large mansions, havelis of merchants have survived only from the 18th century. So 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक 2 तरीके के स्पेसिफिक बिल्डिंग्स बन रही थी. एक पर्सनल यूसेज के लिए, एक पब्लिक यूसेज के लिए. ठीक है? सो द रूलर्स इन विच प्लेस दे ऑल वर रूलिंग लाइक फोर्ट्स, किले जो उनके थे, पैलेसेस जो महल थे उनके, गार्डन रेजिडेंसेस जो बगीचों का एरिया बनाते थे जहाँ पे ये बैठा करते थे, टॉम्स जो गुम्बद बनते थे, है ना? आप देखते थे ना ऊपर एक ऐसा वाला शेप बनता था, ये वाला है ना? यस, टॉम का स्ट्रक्चर इसमें दिया होगा, मैं बता दूं. ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज अ टॉम शेप. ठीक है? तो आप देखते थे पुरानी जितनी बिल्डिंग्स होती थी इनमें ऐसा वाला एक शेप बना होता था. तो ये सब ये बनाते थे इस तरीके से कि इसकी सिक्योरिटी बहुत अलग हो, कोई एंटर नहीं कर पाए. प्लेस ऑफ लेजर बेसिकली, जहां पे हर तरीके का सुकून था, सिक्योरिटी थी, राइट? विच वॉज मेंट फॉर पब्लिक, विच वॉज मेंट फॉर पर्सनल यूसेज. एंड द बिल्डिंग्स विच वर मेड फॉर द पब्लिक लाइक मॉस्क, टेम्पल्स, मॉस्क यानी मस्जिद, ठीक है, टेम्पल्स हो गए, टैंक्स हो गए, टैंक्स यानी जहाँ पे पानी लेने जब जाते थे, वेल्स, कारावान सराइज, जो कारावान चलते थे उसमें, कारावान पता है क्या होता है? नो, दे आर बंजारा. तो जो बंजारों की टोली होती थी दैट वाज कॉल्ड कारावान. तो कहीं कहीं पे उनके लिए सराय बनाई जाती थी, जैसे धर्मशाला की हम बात करते हैं, राइट?
धर्मशाला जैसी जगह पे सराय होती है जहाँ जाके लोग रुक जाते हैं एज अ गेस्ट, जैसे ओयो होटल समझ लो। फाइन। और बाजार नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्ड होती थी। सो दो तरीके की बिल्डिंग्स उस समय प्रचलन में थी, एक पर्सनल यूसेज के लिए, एक पब्लिक यूसेज के लिए। हवेली का स्ट्रक्चर तभी बनना शुरू हुआ, हवेलियां पहले होती थी जिसके अंदर लोग रहते थे, जो बड़े लोग होते थे। Now, engineering skills and constructions, monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof, for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. अब आप इस बात को ऐसे समझो, किसी के घर में पुराना घर कभी देखा है तो क्या होता था, दीवारें जो होती थी ईंटें की होती थी, जो ऊपर की सीलिंग होती थी वो लकड़ी के स्लैब्स लगते थे। अगर तुमने देखा हो, लकड़ी के चौकोर चौकोर स्ट्रक्चर्स होते थे। कई पुराने घरों में वो लकड़ियां ऐसे पट्टे दिखते रहते हैं काले काले रंग के, है ना। वो स्ट्रक्चर यूज होता था तब बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। उनको मतलब ईंटों के बीच में लकड़ी करके तब सीलिंग को मजबूत किया जाता था। ये तब का पैटर्न है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती थी कि अगर एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर बनाना है तब उसके ऊपर काम करने में दिक्कत होती थी, राइट। मतलब एक ग्राउंड फ्लोर बनाना है, दैट वाज इजी, बट इफ यू हैव टू गो ऑन with the different floors, so that was difficult to make the superstructure. This was the problem that by the in the ancient or in medieval the house was on one. Correct. So now between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called Trabeate or Corbelled. Between the 8th and 13th centuries, the Trabeate style was used in the construction of temples, mosques, tombs and buildings attached to large step walls. बावलीस, दिल्ली में एक है ना अग्रसेन की बावली। पीके मूवी देखी है? Yes ma'am. पीके तो सबने देखी होगी ना। तो पीके जहाँ जाके बैठता था, Yes ma'am. जहाँ वो अकेले, हाँ जहाँ अकेले जाके बैठता था उसको कहते थे अग्रसेन की बावली, उसका नाम है। स्ट्रक्चर देखा है उसका? सीढ़ियाँ 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 थी, दोनों तरफ से दीवारें थी, है ना। नीचे जाके टैंक्स था पानी का। तो बावली वो स्ट्रक्चर होता था जिसको कहते थे ट्रैबिएट स्ट्रक्चर। दो टाइप के स्ट्रक्चर्स तब बनाए जाते थे, वन वाज ट्रैबिएट एंड अदर वन वाज कॉर्बेल्ड। कॉर्बेल्ड फोटो देखो, फोटो समझ में आएगा। ये फिगर नंबर 2A देखिए, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रैबिएट स्ट्रक्चर। सिंपल सिंपल दीवार और बीच में जो टॉम स्ट्रक्चर का एरिया है, और दूसरा वाला है दैट इज अ कॉर्बेट टेक्निक यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। ये ठीक है, फाइन। हाँ, तो बच्चों ये दोनों वर्ड मार्क कर लीजिए, ट्रैबिएट और कॉर्बेट। ये है एक ही चीज, इनके अलग अलग नाम है। सो दिस कैन बी अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रैबिएट? ट्रैबिएट बोलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पीक अप। Trabeate. And the other name of Trabeate is Corbelled. Make sure, keep this thing in mind. Now, temple construction in the early 11th century, the Kandariya Mahadev temple dedicated to Shiva was constructed in 999 by the king Dhangadev of the Chandel dynasty. तो कंदरिया महादेव का मंदिर था जो शिवजी का मंदिर था, जिसको 999 ईस्वी में बनवाया था किसने? चंदेल डायनेस्टी के राजा धंगदेव ने। मार्क करिए, सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेक अ स्टार ओवर देयर। So figure 3B is the plan of the temple and ornamented gateway led to an entrance in the main hall, Mahamandapa, where dances were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine, Garbhagriha. This was the place for ritual worship where only the king, his immediate family and priests gathered. The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. The temples were decorated with elaborately carved sculptures. तो ये आपका फिगर नंबर 3B जो है, ये जो रॉ प्लान बनता है पेपर पे, ये वो है, उसकी फोटो है। तो एंट्री किसी भी पुराने मंदिर में अगर तुम गए हो तो तुमको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक बड़ा सा एंट्री है ना, भगवान की मूर्ति जो होती थी वो मेन महामंडप में होती थी, जो गर्भगृह होता है। अगर आप विश्वनाथ टेम्पल में भी गए हैं तो
जो मेन शिव जी का मंदिर है वो गर्भगृह के अंदर ही है ना? Huge area where everyone Yes. takes and see the करेक्ट। और जो महामंडप हॉल जो होता था, जहाँ पे जैसे एंट्रेंस से आप घुसे और महामंडप हॉल में सारे इकट्ठे होते हैं लोग, भीड़ लगती है, वहां से लाइन लगनी शुरू होती है टुवर्ड्स द गर्भगृह, राइट? यही एक स्ट्रक्चर, चाहे अक्षरधाम गए हो, जो भी मंदिर पुराना आपने देखा है, इधर बालाजी, सिद्धि विनायक, व्हाटसोएवर, इसी तरीके से बनता था जो भी मंदिर मिडिल एरा में बना है। गॉट इट? आई होप दिस इज, बच्चों दिस चैप्टर इज वेरी इजी। आप जितना देखे हैं अभी तक, आपने जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखे एंड मोस्टली आर मेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, so you need to understand what were the structures called. So this chapter is actually not very important, but you just need to know what were the historical facts about making such monuments and this thing. Fine? स्कल्पचर एक वर्ड है, स्कल्पचर यानी उस दीवार पे क्रेविंग करके ना, स्क्रिबलिंग कर करके डिजाइन्स बनाना। जैसे आपने खजुराहो मंदिर में देखा है, मूर्तियां बनी है अजंता एलोरा में, गुफाओं में, है ना? तो ये उस जमाने का तरीका होता था, जैसे मिट्टी को शिल्पकार मार मार के थोड़ी डिजाइन बनाता है। एग्जैक्टली द स्कल्पचर्स आर दैट। and the flat light were not there to they make नहीं, दैट वाज मेंट ऑन द वॉल्स। The next structure, the Rajrajeshwar temple at Thanjavur, had the tallest shikhar amongst temples of its time. Constructing it was not easy because there were no cranes in those days, and the 90-ton stone for the top of the shikhar was too heavy to lift manually. तो राजराजेश्वर टेम्पल जो थंजावुर में है, माफ करिए, नाम और उसकी लोकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये अब तक का सबसे ऊंचा मंदिर था उस टाइम पे। दिक्कत क्या होती थी, क्योंकि सीढ़ियां नहीं थी, क्रेन्स होती है ना, वो जो लंबी सी इलेक्ट्रॉनिक जिससे खींच के आगे पहुंचा देते हैं, ऊपर रख देते हैं, तब तो वो था नहीं। तो 90 टन की जो ईंटें थे उनको मैनुअली यानी इंसान खींच खींच के ऊपर रख ले जा रहा था, तब ये सब मंदिर बने। So the architects built an inclined part to the top of the temple, placed a boulder on rollers and rolled it all the way on the top. The path started more than 4 kilometers away so that it would not be too steep. This was dismantled after the step was constructed, but the residents of that area remembered the experience of the construction of the temple for a long time. Even now a village near the temple is called Charupallam, the village of the incline. तो इन्होंने क्या किया था, जब मंदिर बना रहे थे ऊपर के स्ट्रक्चर में ईंटें पहुंचाने थे, तो पीछे एक फिसलन वाला जो स्लाइड होती ना, आपकी स्लाइडिंग करते थे ना बचपन में, वैसे रास्ता बना दिया था और उसपे खींचते हुए ना गिराते हुए ऊपर तक चला जा रहा था ईटा। तो जब पूरा मंदिर बन गया तो वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। इसीलिए राजराजेश्वर टेम्पल के पास एक एरिया है जिसका नाम है चारूपल्लम, जिसका दूसरा नाम है विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तुम्हें इंक्लाइनेशन नहीं पता बेटा, चढ़ाई, डिक्लाइन, इंक्लाइन, डिक्लाइन वर्ड सुना है? वैसे इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन मतलब चढ़ना, डिक्लाइन मतलब उतरना। गॉट इट? What differences do you notice between the shikhars of the two temples? Can you make out that shikhar of the Rajrajeshwar temple is twice as high as that of the Kandariya Mahadev? तो दोनों फोटो है आपके सामने, ये राजराजेश्वर टेम्पल की और ये कंदरिया महादेव की। तो क्या पूछा जा रहा है? फाइन। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि प्लीज वॉच बोथ द शिखर्स ऑफ द टेम्पल्स एंड डू दैट टू फाइंड आउट कि राजराजेश्वर टेम्पल का जो टावर है वो ज्यादा बड़ा है, करेक्ट? Yes, ma'am. जो कि थंजावुर टेम्पल का 2 गुना है हाइट में। बच्चों ऐसे छोटे छोटे कितने फैक्ट्स हैं जो अभी तक हमें लगता नहीं आपने मार्क किए हैं। कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, थंजावुर टेम्पल किसने बनवाया, है ना, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो दिख रही हैं। आप मार्क करते चलेंगे तो आपको पता चलेगा। Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arches. This architecture form was called arcuate. ये जो स्ट्रक्चर है आपका राउंड वाला, देख रहे हो? Yes, ma'am. That is the structure of arcuate.
ये जो ऊपर सेमी सर्कल बना देते थे। नया नेट, गुड, अच्छी बात है। Now the number 2, limestone cement was increasingly used in construction. Limestone क्या होता था? चूने का पत्थर, मार्बल सॉर्ट ऑफ, उसको लाइमस्टोन कहते थे। This was very high quality cement which mixed with stone chips hardened into concrete. This made construction of large structures were easier and faster. They take a look at the construction site in figure number 6. ये है ना, तो ये जो लाल वाला पत्थर आप देख रहे हैं ना फोटो में, ये है लाइमस्टोन। फाइन, तो इनका भी यूज होना शुरू हो गया था। Describe what the laborers are doing, the tools shown and the means of carrying stones. तो अगर आप फोटो को देख पाए थोड़ा बहुत, जो आपको समझ में आ रहा है, तो किस तरीके से लेबर जो थे वो पत्थरों को ऊपर ले जा रहे थे। पिक्चर इतनी विजिबल नहीं कि आप समझेंगे नहीं, फिलहाल फिजिकली एक के ऊपर एक ट्रांसफर करते करते जा रही थी चीजें, है ना, चेन ऑफ पीपल। जैसे आपने देखा होगा घर बनता है तो सारे मजदूर खड़े हो जाते हैं ना, ईंटा उठाते हैं, आगे आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। हाँ, घोड़े से आ रही है चीजें, जानवर दिख रहे हैं कुछ, फिर ये लंबा वाला डंडा है, इससे पुश करके ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो बहुत कुछ है। Now building temples, mosques and tanks. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. Take the example of the Rajrajeshwar temple. An inscription mentions that it was built by King Rajrajdev for the worship of his god Rajrajeshwaram. Notice how the names of the ruler and the god were very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the rituals of worship in the temple, one god honored another. तो मंदिर बनवाने का, जो मस्जिद बनवाने का प्रचलन था उसमें बहुत था, क्योंकि वो सबसे सुंदर बनाया जाता था। वहां पे जिस भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी, राजा भी उसी से मिलता जुलता नाम रखता था, बिकॉज जनता ये बिलीव करती थी कि जो राजा है ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, है ना, तो लोग उसको भी वैसे ही नाम देते थे। तो जो राजा होता था बेसिकली वो वैसे ही उपाधि, जो टाइटल दे यूज टू कैरी विद देयर नेम्स, वो उसी से मिलती जुलती करते थे। सो जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो राजराजदेव थे, राजा थे, जिनके टाइम पे राजराजेश्वर टेम्पल बना था, वहां पे इन्होंने अपने को भी राजराजदेव ने राजराजेश्वरम नाम अपने को दिया था, राजा ने खुद को। ठीक है, फाइन। जैसे बाहुबली, पिक्चर का नाम बाहुबली क्यों पड़ा था? हीरो का नाम बाहुबली थोड़ी ना था, बल था। तो लोग क्या करते, जो कॉमन लोग होते थे वो उसको नाम दे देते थे, है ना। ठीक है, फाइन। The Mughal Emperor Shah Jahan's chronicler declared that the ruler was the architect of the workshop of empire and religion. इसको मार्क करिए and write a star there. Chronicler कौन होता है? Also write the things by event by event. Correct. Chronicles होते थे ना इवेंट्स के बारे में, तो वन आफ्टर अनदर इवेंट को सिस्टमैटिकली जो लिखते हैं, दे आर कॉल्ड क्रॉनिकलर। क्या बेटा, शाहजहां को बोला जाता था कि आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। तो जितना एम्पायर और रिलीजन पे चीजें बनी थी, ये इनका आर्किटेक्ट था, यानी सबको डिजाइन करने वाला था शाहजहां। ठीक है। The largest temples were all constructed by kings. The other lesser deities in the temples were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as they brought the just rule of the gods on earth. तो जो बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, वहां पे बहुत सारे भगवान की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। तो जो मंदिर बनाया जाता था, जो प्लेस ऑफ रिलीजन होता था, बेसिकली वो इस तरीके से बनाया जाता था कि जितना उस राजा का राज्य है उस मंदिर में आके वो पूरा दिखे, ताकि जब लोग पूजा करने जाए मूर्ति की तो उनको ये लगे कि पूरा जो दुनिया है
जो पूरे वर्ल्ड के जितने भगवान हैं वो सब वही आ गए। राइट? तो क्रिएशन इस तरीके से किया जाता है। जैसे तुम पुराने मंदिरों में जाओगे तो तुमको बहुत सारे भगवान की फोटो दिखेगी, है ना? एंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर किंग यू विल एबल टू सी। कुछ भी है तो हुमायूं टॉम्ब घूमने जाओ तो बाहर की तरफ एक बड़ा सा पत्थर रहता है जिसमें ये लिखा होता है किसने बनवाया, किस राजा ने बनवाया, उन्होंने कैसे कैसे इसको बनवाया, वट एवर द थिंग्स विच वॉज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट। Go to religious temple, like in Hindu, the savari which we call it again like Shankar Bhagwan में सारी चीजें लिखी होती है, इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन, ताकि सदियों बाद भी जो भी उस मंदिर में आए या उस एरिया में आए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड who has made it, why he has made it, what is the contribution of this particular building in the historic era. Right? yes, ma'am. Muslim sultans and padshahs did not claim to be incarnation of God, but Persian courts chronicles described the sultan as a shadow of God. तो जो मुस्लिम सुल्तान थे वो ये बिलीव नहीं करते थे कि पुनर्जन्म होता है। इनकारनेशन मीन पुनर्जन्म या अवतार लेना, है ना, कि कोई भगवान का अवतरित हुए हैं, इस रूप को वो नहीं मानते थे। बट सम ऑफ द क्रॉनिकल्स हैज डिस्क्राइब दैट सुल्तान जो होते थे, जो मुस्लिम सुल्तान होते थे, वो शैडो ऑफ गॉड है, यानी भगवान की छाया है। फाइन। An inscription in the Quwwat al-Aslam mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. तो मॉस और सोलोमन जो लोग थे उनकी छवि दिखती थी अलाउद्दीन में, इसलिए अलाउद्दीन बहुत बड़ा राजा बना। People believe that the greatest lawgiver and architect was God himself. lawgiver यानी कानून बनाने वाले, और आर्किटेक्ट जिसने दुनिया की रचना की वो भगवान खुद हैं। He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. तो भगवान ने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है। chaos यानी आपस में जो लड़ाई झगड़ा है, स्ट्रगल जो है, उसके बिना बनाया था, और एक ऑर्डर, एक तरीका और एक सिमेट्री यानी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस दुनिया को बनाया है भगवान। ठीक है? ये जो फोटो है ये किसकी है? नो, जामी मस्जिद की। इसको बनवाया था शाहजहां ने, जो बाद में बन गया था शाहजहानाबाद, शाहजहां की नई कैपिटल, राजधानी थी उनकी। ये जगह है, देखो मॉस्क है, मॉस्क में किबला है, ये हुआ है, ये एंट्रेंस है ना, और ये इनका इबादत खाना है जो करेक्ट। Ma'am, I doesn't understand why all what you see on the west is where the Makkah is there. Why, ma'am? Because that you need to understand by the reading of Quran. ठीक है, पूरा ऑफलाइन है हम लोग, चलो कोई। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to be rulers, constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rulers and their realm. So, whosoever new king has been introduced in that particular era, they do try to define the architects and their sculpture. So उसमें डेवलपमेंट आता रहा और वेरिएशन दिखते रहे। फाइन। लेकिन जो उनके आगे आने से पहले जो लोग थे उस चीज को उन्होंने मेंटेन किया, उस तरीके को उन्होंने चेंज नहीं किया। Now it was widely believed that the rule of the just king, it would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. तो क्या मानते थे कि जो बारिश बरसती है उस पानी को भी हमें स्टोर करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान बरसाते हैं। फाइन। तो इन्होंने जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे टैंक बनाना शुरू किया, जैसे आप गुरुद्वारा में देखा है, गोल्डन टेम्पल है ना, पूरा है वहाँ पे। Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi, एक ऊना, इसको मार्क कर लीजिए।
किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने पहली बार बनवाया था दिल्ली पूना में पानी का रिजर्वॉयर यानी टैंक, जिसके लिए इनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। इट वॉज कॉल्ड द हौज़ सुल्तानी ऑफ द किंग्स रिजर्वॉयर। इसका दूसरा नाम क्या था? हौज़ सुल्तानी, हौज़ या किंग्स रिजर्वॉयर। Can you find it on map 1 in chapter 3? Rulers often constructed tanks and reservoirs big and small for use by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple, mosque, note the small tank in the Jami Masjid, or a gurdwara, a place of worship and congregation for Sikhs. तो ऐसी सब जगहों पे टैंक्स पाए जाते थे, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने बनवाए हैं। कुछ कहीं कहीं पे एक्सक्लूसिव था, ओनली द इट वॉज यूज बाय द किंग्स एंड देयर फैमिलीज, एंड समवेयर इट वॉज ओपन फॉर द पब्लिक, कॉमन पब्लिक। जैसे गुरुद्वारे में तो ईच एंड एवरी वन कैन गो, किसी भी गुरुद्वारे में आप जाइए, यू विल फाइंड अ रिजर्वॉयर। व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड? तो पहले जब लूट होती थी तो टेम्पल पे ही क्यों लूट करे जाती थी? आपने सुना होगा ना, बहुत सारे आए इन्वेडर्स आए, उन्होंने मंदिरों पे अटैक किया और पैसा लूट के चले ले जाते थे। Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. In the early 9th century, when the Pandyan king Srimara Srivallabh invaded Sri Lanka, mark करते जाओ बच्चों नाम, and defeated the king Sena I, the Buddhist monk and chronicler Dhammakirti noted, he removed all the valuables. A statue of the Buddha made entirely of gold in the Jewel Palace, and the golden images in the various monasteries, all these he seized. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. तो जब एक राजा दूसरे राजा के एरिया में आक्रमण करता था तो क्या करता था? सबको पता था जो मंदिर जगह होती थी, जो रिलीजियस जगह होती थी, वो वेल्थ दिखाने की जगह थी। दैट वाज अ प्लेस टू शो देयर प्रॉस्पेरिटी, हाउ मच दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग। तो जनरली जो मूर्ति होती थी वो सोने की होती थी या सबसे ज़्यादा महंगे आभूषणों की होती थी, राइट। तो जब कोई लूट मचाने जाता था, आक्रमण करता था, तो वो इन जगहों पे ज़रूर अटैक करता था, क्योंकि उनको पता था सबसे ज़्यादा पैसा इनको वहीं से मिलेगा, फाइन। तो ये एक तरीका था, ये तो हमेशा ही हुआ है। 1739 में जब नादिर शाह आया था इंडिया में, कोहिनूर हीरा हमारे पास था, राइट। कोहिनूर हीरा कौन चुरा के ले गया? यस, नादिर शाह। ब्रिटिश ने चुराया था, नादिर शाह ने चुराया था। उसके बाद वहाँ से ब्रिटिश उसके पास गई। बात समझ में आ गई? इसीलिए होता था। आज भी हमारे जो पुराने मंदिर है उसमें बहुत पैसा है। कभी कभी आप बीच में देखो, 2-3 साल पहले एक बार गेट खुला था शिरडी का, तो उसमें काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, तो कितना पैसा है। Ma'am, there is temple. There are 7 gates are there. It is said that the whole money of the world is there. I know, तिरुपति बालाजी. Yes, ma'am. But they are not opening the people of there. Saying Obviously. Unlucky. वो बेटा धर्म के नाम पे कुछ भी होता है। Because everybody is going to the मंदिर and कुछ ना कुछ पैसा चढ़ाते ही हैं। No, ma'am. It's olden Asian time. नहीं, that is a different thing. मतलब आज भी हम बता रहे हैं, ये जो पुराने मंदिर है इनकी कमाई कितनी है। Everybody is going, everybody is trying to move to such places because they have some spiritual privileges to that place, है ना। तो अपनी लाइफ में सब एक बार शिरडी दर्शन करना चाहते हैं, 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, whatever, whichever place they would like to go, so they all go and they give some monetary help। आप भगवान को ही चढ़ाते हैं, but still that goes and gets stores in the temple, right? Person must be giving a 1 rupee to it. How much money? Lot भाई, बहुत पैसा है वहाँ पे। So okay,